Thank you for joining me on Newshour special Union Minister Mr. Shekhawat. Many people are saying it's just 2 days away from the first vote goes in Rajasthan, but the campaigning has really touched all-time shrill high because the BJP is back to vendetta politics when it knows nothing else, whether it is sending ED for raids or now attaching the Congress's properties related to Associated Journals, 752 crore. How do you respond to this charge of vendetta politics? I think there is no coincidence into it. The Congress party and the leaders of Congress party have done a huge corruption and siphoning of money and adjustment of their black money through this National Herald case and acquired huge assets without having invested a single penny. So this case is being investigated for last so many years, rather I should say. And Rahul Gandhi ji and the family members, they are on bail on this case. So the investigation is going on and all the steps, and this is one of the step of investigation, that the seizure of that attachment of the properties which had happened. Let me also read out the statement, Mr. Shekhawat, that's been put out by the Congress party. PMLA action can only be consequential to some predicate or main offense. There is no transfer of any immovable property. There is no movement of money. There are no proceeds of crime. Indeed, there is no complainant who claims to have been cheated. Not a single one. This is a prefabricated structure of deceit and lies and falsehood. How do you respond? Nothing can be more funnier than this. Everybody in this country is now aware that the leaders of the Congress party and the family members of the Gandhi family, they have acquired huge sum of assets without investing a single penny. And it's a clear-cut, open and shut case of Benami acquisition of the properties. And since now their properties are being attached, so they are speaking like this, and the entire Congress party and the family loyalists, to prove their loyalty, they are stating absolutely false. Shekhawat ji, on the other side has been the gali politics. Murkhon ke Sardar, Panoti, Jeb Katra. Is this desperation on the part of all parties involved, or is this just election season की गर्मा गर्मी? देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जिस तरह से अपनी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है, so out of frustration they are speaking such a foul language. इससे आगे बढ़ करके भी the statements and the language which was being used by खरगे साहब, वो निश्चित ही देश के लिए एक शर्म का विषय है. लेकिन अब जनता समझ रही है that they are fighting the lost battle, and that's why they are speaking. Not only in Rajasthan they have lost their battle, they are aware and they have smelled that they have lost their battle in Chhattisgarh and Madhya Pradesh also. चलिए राजस्थान की बात करते हैं. In 2018, at least you had a clear chief ministerial face as far as the party was concerned. Now, is there confusion? There is Vasundhara Raje campaigning very hard. You are one of the front runners in the chief ministerial race. Many others have been talking about Rajyavardhan Singh Rathore. For the Congress party, the choice appears to be quite clear. Ashok Gehlot. Is this going to be an issue that can spoil the BJP's chances? Do you know that Congress's choice is clear in the Congress? Because I have listened to the interview given by Sachin Pilot ji, an recent interview given by today or yesterday given by C.P. Joshi ji, that it is not decided. The party leadership will have a call and Ala Kaman will have a call post-elections. और ये सभी जानते हैं कि पोस्ट इलेक्शंस बाद में आला कमान को ये कॉल लेने की वहां जरूरत नहीं पड़ने वाली है. जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है,
मेरा प्रश्न यह है कि 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई ये जानता था कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे? ये भारतीय जनता पार्टी में परंपरा रही है। पिछले आसाम के चुनाव में भी हम किसी फेस के साथ में नहीं लड़े थे और अभी मध्य प्रदेश में भी किसी चेहरे के साथ में या छत्तीसगढ़ में भी किसी चेहरे के साथ में नहीं लड़ने। चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में जीतने वाली है और जीतने के बाद में विधायक अपना नेता चुनेंगे और उस पर पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है स्टैंप करेगा। लेकिन एक बात तय है कि जो भी राजस्थान का मुख्यमंत्री का दायित्व निभाएगा, जिसे भी ये उत्तरदायित्व दिया जाएगा, वो यशस्वी हो और राजस्थान अपनी संभावनाओं के अनुरूप द पोटेंशियल विच स्टेट ऑफ राजस्थान हैव, उसके अकॉर्डिंगली राजस्थान प्रगति करे और माननीय मोदी जी के सपनों के विकसित होते हुए भारत, जिस दिशा में हम तेज गति के साथ में सधे हुए कदमों से बढ़ रहे हैं, उस सपनों के भारत को बनने के यात्रा का ग्रोथ इंजन बन सके। हम सब लोग पूरे प्राण और प्रण की ऊर्जा से उसके लिए काम करेंगे। Shekhawat ji, your party has gone big on the Lal diary issue, but you know, and everybody else also knows, that diary entries or accounts have absolutely no value as evidence. Jain Hawala case against senior leaders of your party, उस केस में भी डायरी एंट्रीज को किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी थी। फिर सहारा बिरला डायरीज का एक दौर आया था और राहुल गांधी ने उस पर बहुत से एलिगेशंस लगाए थे। दोनों केसेस में courts did not entertain this as any evidence. Is this all just to create some sort of air and atmosphere of corruption because you want to divert focus from other issues? See, let me tell you very clearly that only an entry in diary cannot be used as a complete evidence, or it cannot be considered as a holistic evidence. But considering all other circumstantial evidences and assessing all other relevant papers about the scams done by the Congress government, this can be utilized, and this can be very well utilized in the court of law as an evidence. But uski zarurat nahi padegi. The Congress party leaders of the government of the day, the ministers and the MLAs, they have done huge corruptions, and many of the cases are there, very evident cases are there, where the corruptions and corrupt activities are already proven. They are open and shut cases, and everyone who has done corruption is going to be punished and put behind the bars. This is the guarantee given by Bharatiya Janata Party through the manifesto which we have declared. शेखावत साहब, आपने कहा है कि आप चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के साथ चाय पे चर्चा करना चाहते हैं। क्या चर्चा होनी है आपके बीच में? ये कौन सी खिचड़ी पक रही है या कौन सी चाय उबल रही है? नाविका जी, देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है दैट अशोक गहलोत साहब अब आने वाले समय में 2023 के इस चुनाव के बाद में पॉलिटिकली रिटायर होने वाले, क्योंकि ये उनका आखिरी चुनाव होगा और ऐसा मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं। कांग्रेस पार्टी ने जितना भ्रष्टाचार किया है, दे आर नॉट गोइंग टू कम बैक एवर इन दिस स्टेट एज ए रूलिंग पार्टी। एंड सेकेंडली, गहलोत साहब जब कभी भी, whenever he used to go out of power, he used to go to Delhi and वहां जाकर के कांग्रेस के AICC में महासचिव के नाते काम करते थे। अब की बार जिस तरह के कांग्रेस पार्टी के आला कमान के नजरों में उनकी प्रतिष्ठा समाप्त हुई है और उनका लॉयल्टी फैक्टर जो है वो 0 हो गया है, अब उसके बाद में अब उनको दिल्ली में भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने कहा था कि गहलोत साहब जब फ्री हो जाएंगे और उनको जो जादू आते हैं, पॉलिटिकल जादू, और मैं उनको जादूगर और बाजीगर इसलिए मानता हूं कि 1998 के चुनाव में जब मदेरणा साहब का फेस चीफ मिनिस्टरियल फेस के तरह रख करके कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था, परिणाम आने के बाद में गहलोत साहब चीफ मिनिस्टर बने। 2008 में सीपी जोशी जी फेस थे और सब जानते हैं कि किस तरह से सीपी जोशी जी हारे थे चुनाव में। उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, उसके कारण
राजस्थान की राजनीति की समीक्षा करने वाले सभी लोग जानते हैं। और फिर गहलोत साहब चीफ मिनिस्टर बने और 2018 में 5 साल तक मेहनत करने वाले सचिन पायलट को चुनाव जीतने के बाद में अपनी जादूगरी से पछाड़ करके मुख्यमंत्री बने। इसलिए मैंने कहा था कि जब वो रिटायर हो जाएंगे तब उनके पास बहुत सारा फ्री समय होगा। तो ये राजनीति के दांव पेच जो वो जानते हैं, पिछले 50 साल का उनका अनुभव है। अगर वो कॉफी पीने के लिए बुलाएंगे तो सर्टेनली आई वुड लव टू गो एंड सिट विद हिम टू हैव ए कॉफी and to learn out of experiences what he has earned in this journey of 50 years. You're not ruling yourself out of the chief ministerial race, are you, Shekhawat Sahab? Nothing can be funnier than this. See, in my party, it is not the person who decides that what role he is going to have in the party. And the ideology of my party and my thought, the family which we come from, that देश प्रथम, दल द्वितीय और व्यक्ति सबसे आखिर में। सो देश के लिए जिस व्यक्ति की जहां आवश्यकता हो और दल के लिए जिस व्यक्ति की जहां उपयोगिता हो, वहां वो व्यक्ति उस दायित्व के साथ में काम करे। राजनीति के क्षेत्र में सरकार में रह करके काम करे, संगठन के में रह करके काम करे, समाज में रह करके काम करे, और उससे आगे बढ़ करके भी मैं ये कह सकता हूं कि वो समाज के किसी और क्षेत्र में जाकर के काम करे। बट वेर एवर ही विल बी वर्किंग और वेर एवर आई विल बी असाइंड फॉर, आई विल बी वर्किंग विद द सेम zeal, सेम level of commitment and similar level of hard work what we are doing at what I am doing at this point of time, because I am clear that wherever I'll be working or I am working for the भारत माता की जय। और भारत माता की जय करने के लिए कहीं भी काम करें, it always gives you energy, inertia and commitment to work. Shekhawat ji, Pradhan Mantri Modi has been speaking of the internal friction within the Congress party between Gehlot and Sachin Pilot. He's also said that two rivals within the Congress have shaken hands 100 times, but there has been no reconciliation. But is all well amongst the leaders within the BJP? I ask you this because if all was indeed well, why would there be as many as 11 rebel candidates fighting as independents against the BJP in as many seats? These include Raje loyalists like Yunus Khan or Bansidhar Bajja or Bhavani Singh Rajawat. क्या कांग्रेस में भी इस तरह के बागी हैं? Why is only the Congress's internal strife played up by the BJP? देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी में आपसी विग्रह का प्रश्न है, पिछले चुनाव पर के परिणाम आने के बाद में और सरकार बनने के बीच से लेकर के जो लड़ाई आपस में शुरू हुई थी, एक कुर्सी से हटना नहीं चाहता था और दूसरा कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहता था, और उस लड़ाई की कीमत राजस्थान के 7.5 करोड़ लोगों ने चुकाई है। राजस्थान की 2 लाख महिलाओं के साथ उस लड़ाई के चलते हुए दुराचार हुआ है। राजस्थान के हजारों किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा और 70 लाख युवाओं का भविष्य के सपने चूर चूर हो गए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, और जो आपने प्रश्न किया है कि हमारे यहाँ इतने सारे रिबेल्स हैं, आपने कुछ नाम भी लिखे हैं, लेकिन नाविका जी मैं स्पष्ट कर दूं कि जब जिस पार्टी की ये तय हो कि सरकार बनने वाली है, तब उसमें ऐसे महत्वाकांक्षी नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, कि जो चुनाव के रण में अपने आप को उपयोगी मानते हुए, अपने आप को उपयुक्त मानते हुए कंटेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं, उनकी संख्या कंपैरेटिवली बढ़ जाती है। और इतने सारे रिबेल्स का होना इस बात का परिचय है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार में आ रही है। अधिकांश लोग पार्टी के परिवार में वापस आ गए हैं। आपने भवानी सिंह जी राजावत का कहा, वो भी रिटायर होकर के पार्टी के लिए, पार्टी की कैंडिडेट कल्पना राजे जी के लिए काम कर रहे हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि इन सब का कोई प्रभाव, कोई प्रतिकूल प्रभाव भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा पर नहीं पड़ेगा। हम प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार अब आ रहे हैं, ये अब तय हो गया है।
Congress in its manifesto has made an allegation that their freebies will drain the Rajasthan economy. But the Congress has criticized this and said that welfare schemes are being projected as freebies. आप करें तो welfare, वो करें तो freebies. क्या कुछ डिफरेंस है पॉलिटिक्स में? देखिए, आपको इस विषय का फर्क इस तरह से समझना पड़ेगा। कोई राजनीतिक दल अपने चुनाव अभियान के समय जिस तरह के वादे करे और उन वादों को पूरा करने के कमिटमेंट के साथ में चुनाव के मैदान में उतरे और 5 साल तक उन वादों को पूरा करने के लिए काम करे, या कोई पार्टी जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है कि बिना चुनाव के घोषणा पत्र में लिखे 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय का निर्माण कराए, 4 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण कराए, 4 करोड़ से ज्यादा घरों में बिजली पहुंचाए, 10 करोड़ तक महिलाओं को गैस का चूल्हा दे और 45 करोड़ तक लोगों के खाते खुलवा दे, देश की 1/2 से ज्यादा आबादी को चिकित्सा की सुरक्षा दे, चिकित्सा की सुविधा प्रदान करे, उसको आप फ्रीबीज नहीं कह सकते। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरह 4.5 साल तक सत्ता में रहने के बाद में जब ये भरोसा और विश्वास हो जाए कि वी आर नॉट गोइंग टू कम बैक इन द गवर्नमेंट एंड वी हैव लॉस्ट आवर ग्राउंड, तब उस जो है पार्टी उस प्रेशर में आकर के अंधाधुंध घोषणाएं जिनको वो पूरी नहीं कर पाएगी या नहीं कर सकती या नहीं करने के उनके पास में मार्ग नहीं बचा है, केवल वोटों के लालच में, वोटों की महत्वाकांक्षाओं में सरकार में बने रह सकने की इच्छा को लेकर के इस तरह की घोषणाएं करें, देन दे आर कंसिडर्ड एज रेवडीज एंड फ्रीबीज। इन दोनों के मूलभूत फर्क को समझिए तो निश्चित ही आपको लगेगा कि क्यों भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में की गई घोषणाएं और कांग्रेस पार्टी द्वारा पिछले 6 महीने में पहले महंगाई राहत शिविर के नाम पर की गई घोषणाएं, गारंटीज, और उसके बाद में दी गई 7 गारंटीज और 7 गारंटीज के पर से क्योंकि जनता का कांग्रेस पार्टी पर से ही विश्वास उठ गया, उनकी गारंटी समाप्त हो गई है, दे हैव लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी एंड गारंटी। तब जो है वो घोषणा पत्र में ये जानते हुए कि अब वो सरकार में नहीं आने वाले हैं, जनता ने उनको नकार दिया, तब वो लिख करके भेजते हैं, वो फ्रीबीज की तरह या वो रेवड़ियों की तरह काउंट की जा सकती। शेखावत जी, एक और बहुत संगीन सवाल है, वो है कन्हैया लाल का जिस तरह से मर्डर हुआ और जिस तरह से फेस्टिवल्स में हिंदू फेस्टिवल्स को टारगेट किया गया राजस्थान में। अब प्रधानमंत्री ने भी इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन कांग्रेस का पलटवार है दैट अशोक गहलोत सरकार ने 4 घंटों में उन लोगों को अरेस्ट कर लिया था और उनके लिंक्स बीजेपी से पाए गए। तो क्या ये पूरा कांड बीजेपी ने करवाया? सवाल तो ये उठता है। देखिए, राजस्थान में जिस तरह से वर्तमान की सरकार ने कांग्रेस पार्टी की नीति और कांग्रेस पार्टी के चरित्र के तहत आचरण करते हुए, अनुकूल आचरण करते हुए कि समाज को बांटो और राज करो, जो कि अंग्रेजों से उन्होंने इनहेरिट किया, पहले देश को बांटा, फिर देश के बचे हुए देश को बोली के आधार पर, भाषा के आधार पर बांटा, फिर देश को अमीर और गरीब के नाम पर बांटा, मजहब के आधार पर बांटा, ऊंचे और नीचे के आधार पर बांटा, अगड़े और पिछड़े के आधार पर बांटा, और अब जातियों के आधार पर बांटने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और जिस तरह से तुष्टीकरण का तांडव अपनी वोटों की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए समाज को बांटते हुए इस सरकार ने किया और सारी हदें लांघ दी। करौली में दंगा हुआ, भीलवाड़ा में दंगा हुआ, जोधपुर में दंगा हुआ, उन दंगों में जिस तरह से तुष्टीकरण हुआ, उसकी जांच में, मुआवजे में जिस तरह से तुष्टीकरण हुआ, उसका परिणाम जो है वो कन्हैयालाल की बीहेडिंग था, कन्हैयालाल की गला काट करके हत्या कर देना था। विषय ये नहीं है कि उसको 4 घंटे बाद में 2 युवकों ने साहस करके पकड़ लिया था और पुलिस के सुपुर्द कर दिया था। विषय यहाँ ये है कि 7 दिन तक पुलिस से गुहार लगाने के बावजूद भी, लिखित में शिकायत करने के बावजूद भी, 3-3 बार थाने में जाने के बावजूद भी, थाने के निर्देश पर सीसीटीवी कैमरा लगा दिए जाने के बावजूद भी, धमकी देने वालों से थाने के दबाव में लिखित में माफी मांग देने के बावजूद भी उसकी गला रेत करके हत्या की गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी अशोक गहलोत साहब की गृह मंत्री होने के नाते और मुख्यमंत्री होने के नाते है कि नहीं है? पहले इसका जवाब उनको देने की आवश्यकता है। इस राजस्थान में तुष्टीकरण का तांडव हुआ, अलवर में मंदिर शिवालय तोड़े गए,
सालासर में राम दरबार गिराया गया, रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया गया, हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाए गए और पीएफआई के जुलूस निकालने के लिए सरकार का संरक्षण और सहयोग दिया गया। ये जो पाप गहलोत साहब ने किया है, कितने भी बयान दे दें उनसे बच नहीं पाएंगे। Another key issue raised by the BJP is crimes against women. लेकिन कांग्रेस का कहना है और उन्होंने डेटा भी डाला है कि कन्विक्शन इन रेप केसेस राजस्थान में सबसे ज्यादा है, 48%। नेशनल एवरेज जो है वो 29% से कम है, 29% से कम है। ऑल्सो उनका कहना है कि क्राइम्स पर लाख अगेंस्ट वुमेन 105 है राजस्थान में, लेकिन असम वो भी बीजेपी रूल्ड स्टेट है, इट इज 168.3। दिल्ली में जहां दिल्ली पुलिस है वहां 147.6 है, हरियाणा में 119.7 है। उनका कहना है कि राजस्थान तो नंबर 6 पे आता है जिसकी इतने सवाल उठाए जाते हैं बीजेपी द्वारा। इसका क्या जवाब है? नाविका जी, ये एनसीआरबी का डेटा कहता है कि राजस्थान महिलाओं के प्रति दुराचार के दृष्टिकोण से देश में पहले नंबर पर है। अभी किसी तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट वो दें। विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के शांति धारीवाल जी ने इस बात को स्वीकार किया है दैट हाँ, हम पहले नंबर पर हैं, और उसके बाद में उन्होंने बेशर्म बेहया होते हुए यह कहा था कि ऐसा इसलिए है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। अब अगर वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ 48% कन्विक्शन है, क्या कन्विक्शन के आधार पर उस महिला की गरिमा जो तार तार हो गई, उस बच्ची जिसको गला दबा करके मारने का प्रयास किया दुराचार के बाद, दरिंदगी के बाद में, जिस बच्ची को दरिंदगी करने के बाद में आग कोयले की भट्टी में झोंक दिया गया या तेजाब डाल करके जला दिया गया, उसके परिजनों के दुख और तकलीफ को क्या वो कन्विक्शन करके समाप्त कर सकेंगे? उसके रोकने की जिम्मेदारी जिनकी थी, उन लोगों ने अनर्गल बयान दे करके, गैर जिम्मेदाराना बयान दे करके अपने विधायकों को संतुष्ट करने के लिए उनकी रिकमेंडेशंस पर पैसा लेकर के पोस्टिंग करने के कारण से जिस तरह के हालात राजस्थान में बने, और राजस्थान जिसकी पहचान महिलाओं की गरिमा, महिलाओं के सम्मान से थी, जिस राजस्थान के मर्दों ने महिलाओं की सम्मान और इस संस्कृति के मानबिंदुओं की रक्षा के लिए अपनी पीढ़ियां कुर्बान कर दी थी, उस राज्य की पहचान पर कालिक पोतने का पाप करने वाले लोग कि हमारे इतना कन्विक्शन हो गया है। कभी कहते हैं कि हम केसेस ज्यादा रजिस्टर करते हैं, कभी कहते हैं कि हमारे यहाँ रेप ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि रिश्तेदार इस तरह की घटनाएं करते हैं, कभी कहते हैं कि केंद्र सरकार ने कठोर कानून बना दिया इसलिए रेप के बाद में किलिंग्स ज्यादा हो रही हैं, और कभी कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है इसलिए ज्यादा रेप होते हैं, और अब कहते हैं कि हम जितने रेप केसेस होते हैं उसमें ज्यादा कन्विक्शन कर पाते हैं। सवाल तो यह है कि उन सब महिलाओं की इज्जत को तार तार होने से बचाने से आप रोक क्यों नहीं पाए, और इस सवाल का जवाब शायद वो कभी नहीं दे पाएंगे। मिस्टर शेखावत, ओबीसीज 35 से 40%, 35 to 40% ऑफ राजस्थान पॉपुलेशन है। Ashok Gehlot has promised a caste census. You insist that the rules do not allow it for it being conducted. बिहार में उनके सरकार ने किया है, वहां आपकी पार्टी सपोर्ट करती है, राजस्थान में आप अपोज करते हैं। Is this again yet another just poll rhetoric that is being done by both sides? जैसा मैंने पहले कहा कि कांग्रेस का चाल और चरित्र ऐसा है कि बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो, और समाज को उन्होंने पहले ही बहुत सारे टुकड़ों में विभक्त किया है। मैं तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पहले भी प्रश्न कर चुका हूं कि उन्होंने इस बात का जवाब देना चाहिए कि समाज की जातिगत जनगणना को लेकर के जो विचार खुल करके राहुल गांधी जी को बोलने की आवश्यकता है कि जो विचार राजीव गांधी जी के थे, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के थे, क्या वो उन विचारों से सहमत हैं कि नहीं। और दूसरा, जहां तक जनगणना का प्रश्न है, मैं फिर कहूंगा कि जनगणना संविधान के अनुरूप केंद्र की सूची का इट्स सब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल लिस्ट, और उसमें राज्य सरकार जनगणना नहीं कर सकती। बिहार में सर्वेक्षण हुआ है, सर्वेक्षण और जनगणना का फर्क समझना होगा। मुझे लगता है कि जयराम रमेश साहब को फर्क ये जो है, मैं मानता था वो बहुत समझदार आदमी है, पर शायद इस बारीकी से वो देख नहीं पाए, इसलिए उनसे ये चूक हो गई है। खैर, आपने सारे सवालों का जवाब तो बहुत सटीक दिया, लेकिन
असली डिटेल निकलेगा जब 3 दिसंबर को 3 दिसंबर को ईवीएम्स खोलेंगे, किसके खेमे में कितने वोट गए ये पता चलेगा। लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस वेरी स्पेशल एडिशन ऑफ द न्यूज आवर, गजेंद्र शेखावत जी। एंड वील सी, जो जीता वही सिकंदर, क्योंकि यही है जनता का ओपिनियन।